ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ರಾಖಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಬಂಧನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿಗಳಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಈ ನೀತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ಕೇಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ, ಈಗ 2025 ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರದ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 24/7/2025 ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ 2025 ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 2025ರಿಂದ 2045ರವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ನೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಾಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೀತಿಯು 2002ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಈ 2025ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋನ್ಮುಖ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಸಹಕಾರ ನೀತಿಯು ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ನೀತಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿರುತ್ತಾ? ಮೇಡಮ್, ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಸ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಮೇಡಮ್? ಹೌದು ಸರ್. ಈ ನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ 2025. ಈ ಅನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान सुरेश प्रभु जी, जिनके नेतृत्व में 40 सदस्यों ने अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ संवाद कर एक प्रकार से परिपूर्ण और दूरदर्शी सहकारिता नीति की सहकारिता क्षेत्र को भेंट देने का काम किया है।
वाक्य में कहे तो सहकार के समृद्धि के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनाना, उसका मिशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और तकनीक से युक्त, जिम्मेदार और आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आर्थिक रूप से सफल छोटी छोटी कोऑपरेटिव इकाइयों को बढ़ाना और हर गांव में एक कोऑपरेटिव कम से कम करना, ये लक्ष्य के साथ आज हम आगे बढ़े हैं। और ये लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए 6 स्तंभ, 6 पिल्लर तय किए गए। नींव का सशक्तिकरण, ग्रामीण क्षेत्र पर जो इकाइयां कोऑपरेटिव का काम कर रही है उसको मजबूत करना, कानून में लचीलापन लाकर अगर इकाई फेल कर जाती है तो लिक्विडेशन में ले जाकर नई इकाई रजिस्टर करना। एक भी गांव ऐसा ना हो, पंचायत ऐसी ना हो जहां पर कोऑपरेटिव की उपस्थिति न हो। जीवंतता प्रोत्साहित करना, आत्मनिर्भर, गतिशील और मजबूत कोऑपरेटिव इकोसिस्टम बनाकर हर इकाई को लाइव इकाई बनाने का प्रयास करना। हमारी जो सहकारी समितियां हैं, चाहे ग्रामीण सेल स्तर पर काम करती है, तहसील स्तर पर काम करती है, जिले स्तर पर काम करती है, स्टेट या अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है, वो सारी समितियों को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना और समावेशिता को बढ़ावा देना, मेंबर्स का, समितियों को भी बढ़ाना और समितियों के मेंबर्स को भी बढ़ाना। नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव का प्रवेश कराकर कई सारे क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की भावना के साथ काम करने की नई शुरुआत। हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा था मगर अब ज्यादा काम होगा। टूरिज्म, टैक्सी, इंश्योरेंस और ग्रीन एनर्जी तक का बारीक प्लानिंग हमारे मंत्रालय ने किया है और टैक्सी और इंश्योरेंस में तो हम बहुत कम समय में बहुत अच्छी शुरुआत के साथ बात। एक प्रकार से नए उभरते हुए क्षेत्रों में कोऑपरेटिव की एंट्री मतलब सफल कोऑपरेटिव इकाइयां इकट्ठा होकर एक कोऑपरेटिव बनाएगी जो नए क्षेत्र में कोऑपरेटिव की शुरुआत करेगी। उसका जो मुनाफा होगा वो इकाइयों के माध्यम से अंततोगत्वा पैक्स के मेंबर तक पहुंचेगा। इस प्रकार की एक बड़ी इकोसिस्टम तैयार करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी कोऑपरेटिव एक बहुत अच्छा जरिया है देश के विकास का, ऐसी श्रद्धा खड़ी करना। अभी कहा कि कोऑपरेटिव को अब सम्मान मिला है। मैं आज आप सबके सामने हूं तब भी मैं कहना चाहता हूं कि सम्मान उसी को मिलता है जो सहायता नहीं मांगता है। कोई इकाई ऐसी न हो जिसको सहायता की जरूरत हो। सेक्टर को सहायता करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार तैयार है, 24 घंटे तैयार है, मगर इकाइयों ने अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं आगे बात करूंगा जब अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की बात आएगी तब। इसके अंदर हमने 83 जगह इंटरवेंशन के पॉइंट्स तय किए, 83 हस्तक्षेप के बिंदु तय किए हैं। और सुरेश प्रभु जी ने जैसे कहा, प्रभु जी जो जो चर्चा होती थी ये बीच बीच में बताते जाते थे, तो हमने पॉलिसी आने का राह नहीं देखा। 83 बिंदुओं में से 58 बिंदुओं पर काम हो चुका है और 3 पॉइंट हमारे पूरे भी हो चुके। कार्य प्रगति पर है 58 का, 3 बिंदु पूरे हो चुके हैं, 2 बिंदु ऐसे हैं जो निरंतर चलने वाले हैं, मतलब सातत्यपूर्ण तरीके से चलाने पड़ेगा, और 22 बिंदु पर अब नई शुरुआत होगी। तो ऐसे 83 बिंदुओं पर हमने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। और मित्रों, सहकारी नीति जो है इससे होगा क्या?
निश्चित रूप से इस नीति को बारीकी से सभी राज्य जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब एक समावेशी, सर्वसमावेशी, आत्मनिर्भर और भविष्य केंद्रित, फ्यूचरिस्टिक एक मॉडल बनेगा जो इस देश की कोऑपरेटिव को नया स्वरूप देने का काम करेगा। 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश के जीडीपी में योगदान 3 गुना बढ़ाने का काम हम करने वाले हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है, मुझे मालूम है, मगर हमने इसकी ठीक से तैयारी करी है। 50 करोड़ नागरिक जो एक्टिव मेंबर नहीं है या तो मेंबर ही नहीं है, ऐसे 50 करोड़ नागरिकों को एक्टिव मेंबर कोऑपरेटिव सेक्टर का बनाने का भी लक्ष्य रखा है। समितियों की संख्या में 30% की वृद्धि हम करेंगे, मतलब 8,30,000 है, इसमें 30% की वृद्धि हम करेंगे। हर पंचायत में एक प्राथमिक कोऑपरेटिव होगी, मतलब पैक्स जरूरी नहीं है, प्राथमिक डेयरी होगी, प्राथमिक मछुआरा समिति होगी, प्राथमिक मल्टीपर्पज पैक्स भी हो सकता है, प्राथमिक पैक्स भी हो सकता है। और इसके माध्यम से जो युवा काम कर सकता है, इसकी रोजगारी भी बढ़ाना। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, वित्तीय स्थायित्व और संस्थागत विश्वास, इसको हर इकाई बढ़ाए, इसके लिए एक क्लस्टर भी बनाएंगे और मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम बनाने वाले हैं। और मॉडल सहकारी गांव मेरे मत क्षेत्र में सबसे पहले एक शुरू हुआ है, नाबार्ड का इनिशिएटिव है। ये मॉडल सहकारी गांव जो बने हैं, इसके एक्सपीरियंस का अनुभव कर कर कोऑपरेटिव सेक्टर, जीएससी बैंकों, मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से हर तहसील में 5 मॉडल कोऑपरेटिव गांव खड़ा करने का हम प्रयास करेंगे। श्वेत क्रांति 2.0 के जरिए महिलाओं की सहभागिता को हम इसके साथ जोड़ेंगे। और मैं विश्वास से बता सकता हूं मित्रों कि सारी चीजों को हम 2 समितियों के माध्यम से जमीन पर उतारने का रोड मैप बनने के बाद ही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूं। पर प्रभु साहब का स्वभाव अच्छा बोलने का है, मगर ऊपर अकेले में मुझे पूछा कि 8 माह से दे दिया है, क्यों घोषित नहीं हो रहा है? मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन की तैयारी जब तक न हो तब तक घोषित न करना ये सहकारिता मंत्रालय के लिए बहुत जरूरी था। आज मैं कह सकता हूं कि सहकारिता मंत्रालय मोदी जी के नेतृत्व में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए संपूर्ण रूप से तैयार है और हम इसको जमीन पर उतारेंगे। मित्रों, 2 दशक में टेक्नोलॉजी वो हर छोटे इकाई तक पहुंचे और सामाजिक और आर्थिक ढांचा जो गांव का है उसमें बड़ा परिवर्तन लाए, इस प्रकार का भी इसके अंदर तत्व हमने डाला है। कंप्यूटरीकरण के माध्यम से पूरी कामकाज का तरीका हम बदलेंगे, पारदर्शिता लाने में भी सहायता होगी और क्षमता वृद्धि भी होगी। सहकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, वित्तीय स्थायित्व और पारदर्शिता और चुनौतियों का मुकाबला करने का लचीलापन, इस सभी को हम एक प्रकार के मॉनिटरिंग के माध्यम से नीचे तक पहुंचाएंगे और हर 10 साल में कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए भी हम इसके अंदर व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि कानून जब देश बदलता है तो हर सेक्टर को चलाने के नियम भी बदलने पड़ते हैं और कानून भी बदलना पड़ता है। और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए ग्रामीण इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और देश के गरीब को इसके माध्यम से देश के अर्थतंत्र का बहुत विश्वसनीय हिस्सा बनाने का काम हम करेंगे। एक संतुलित सहकारी विकास
एक राज्य में कोऑपरेटिव आंदोलन अच्छा है, दूसरे राज्य में मध्यम है, तीसरे राज्य में जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त हो गए, ऐसा नहीं चलेगा। हर राज्य में संतुलित सहकारी विकास हो, इसका भी हमने रोड मैप बनाया है। डेटा बैंक के आधार पर ABC ग्रेडेशन कर C के लिए क्या कार्य योजना होगी, B के लिए क्या कार्य योजना होगी और A, B और C को कैसे मजबूत करेंगे, इसकी भी हमने कार्य योजना ढंग से बनाया है। नए सेक्टर खोलने के लिए बहुत धैर्यपूर्वक हम काम कर रहे हैं, मगर मुझे विश्वास है कई ऐसे सेक्टर में कोऑपरेटिव पहुंचेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। यह सहकारिता नीति एक प्रकार से दूरदृष्टिपूर्ण है, व्यवहारिक भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड, परिणामोन्मुखी है। अब इसको हमने 21वीं सदी के मध्य भाग तक की जरूरियातों को ध्यान में रखकर बनाया है। मतलब 2047 तक जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, यही कोऑपरेटिव पॉलिसी के आधार पर हमारे देश का कोऑपरेटिव आंदोलन बढ़ेगा। सहकार से समृद्धि के लक्ष्य के लिए GDP में बढ़ोतरी के साथ साथ रोजगारी और व्यक्ति का आत्मसम्मान, ये दोनों को भी लक्ष्य बनाया गया है। सदस्य केंद्रित मॉडल, उसको नींव बनाने का काम किया है। कोऑपरेटिव का उद्देश्य क्या होना है? सदस्य का कल्याण, मेंबर का कल्याण, ये कोऑपरेटिव का उद्देश्य होना चाहिए। इसके आधार पर इसको नींव बनाकर एक सहकारिता नीति का निर्माण किया गया है। महिला, युवा, ट्राइबल और दलित, इसकी हिस्सेदारी देश के आर्थिक विकास में बढ़ाने के लिए बहुत मौके सृजित करने पर भी ध्यान दिया गया है। और सरकारी समिति को आने वाले दिनों में कुछ ग्रुप में डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा कर हर एक प्रकार की सहकारी समिति का अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म हो। इनकी दृश्यता, विजिबिलिटी और इनकी पहचान, उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। कोऑपरेटिव बैंकों के विकास के लिए भी ढेर सारा आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने किया है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए काफी कुछ हुआ है, मगर बाकी सारे क्षेत्रों में कम हुआ है। इसका मूल कारण था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की एक प्रकार से टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए, पारदर्शिता के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी। बहुत साल से सवाल चल रहा था। सहकारिता मंत्रालय बनने के पहले ही फेडरेशन ने इसके लिए, रिजर्व बैंक ने इसके लिए इनिशिएटिव लिए थे, मगर मुझे आनंद है आप लोगों को कहते हुए कि इसका काम लगभग समाप्त हो चुका है और अब वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग कर इसका विस्तार करने का भी हम काम करेंगे और कॉमर्शियल बैंकों के समकक्ष अच्छी शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक खड़ी हो, कहीं पर भी दोयम दर्जे का व्यवहार न हो, इसको हम सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम इसको चलाने की, अच्छी तरीके से चलाने का एक तंत्र खड़ा कर चुके हैं। ग्लोबल विस्तार, वैश्विक विस्तार और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुंच के लिए हमने एक एक्सपोर्ट की कोऑपरेटिव बनाई है। टेक्नोलॉजी के आधार पर पारदर्शी प्रबंधन करने के लिए भी पैक्स का मॉडल बन चुका है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का मॉडल बनना शुरू है। तो आने वाले दिनों में हर प्रकार की कोऑपरेटिव में टेक्नोलॉजी के आधार पर पारदर्शी प्रबंधन, इसके लिए भी हम चिंता करेंगे। पर्यावरण का स्थायित्व और चक्रीय अर्थव्यवस्था, कोऑपरेशन अमॉन्ग्स कोऑपरेटिव, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके बहुत 3 राज्यों में एक्सपेरिमेंट पहले 1 में चलता था, आज 3 में चलता है। बहुत अच्छे नतीजे मिले और विश्वसनीयता बढ़ी है। अब काफी सारी सरकारी योजनाओं में हम कोऑपरेटिव को जब इंक्लूड करेंगे
तो इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट से परिणाम मिलने की शुरुआत होगी। और एक ऐसा कोऑपरेटिव सेक्टर बनाना है जिसमें युवा अच्छे से अच्छा एजुकेशन लेकर कोऑपरेटिव को अपने करियर बनाए, ऐसा एक विश्वसनीय कोऑपरेटिव मॉडल इस देश में खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। मित्रों, मैं इतना कह सकता हूं कि ये नीति, सहकारिता नीति को जब कोई पढ़ेगा तो प्रथम दृष्टया इसको लगेगा इसमें नया क्या है। बहुत सरल भाषा में, सादी भाषा में बनाई गई है, मगर मेरा आपसे आग्रह है कि इसके मूल तत्व को पकड़िएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर की सारी समस्याओं का समाधान, आने वाले 25 सालों तक कोऑपरेटिव सेक्टर का विकास और कोऑपरेटिव सेक्टर को अर्थतंत्र के विकास के लिए जुड़े हुए जितने भी सेक्टर है, सभी सेक्टरों के समकक्ष खड़ा करने की क्षमता, ये क्षमता की निर्मित ये कोऑपरेटिव पॉलिसी के अंदर है। ढेर सारा काम हमारा समाप्त हो चुका है। देश भर का राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस बन चुका है। अब ये डेटाबेस का अपडेट करने का काम भी 2-3 महीनों में जिला स्तर से, तालुका स्तर से शुरू हो जाएगा। इसका जियो मैपिंग भी शुरू हो चुका है। पैक्स को लिए कॉमन बायलॉज बनाना था, बनाना बहुत सरल था, मगर देश भर के पैक्स इसको एडॉप्ट करे, सभी राज्य इसको अडेप्ट करे, बहुत कठिन था। मगर आज मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताता हूं, सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया है विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और अब तक लगभग 45,000 नई प्राइमरी सोसाइटीज जो 2 लाख बनानी से है, इसमें बनाने का काम लगभग समाप्त हो चुका है। पैक्स का कॉम्पिटिकरण का काम भी समाप्त हो चुका है और 25 नए काम जो पैक्स के साथ जोड़े थे, 2 छोड़कर सब में कुछ न कुछ प्रगति होकर एक सफल मॉडल बनाने का हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, अब तक 4108 पैक्स को स्वीकृति मिल चुकी है। पेट्रोल डीजल के रिटेल आवेदन 393 पैक्स ये काम कर चुके हैं। एलपीजी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए भी 100 से ज्यादा पैक्स कर चुके हैं। हर घर नल से जल का प्रबंधन भी मिला है। पीएम सूर्यघर योजना का काम भी पैक्स कर रहे हैं। कई सारी चीजें हमने समाप्त कर दी। इस सब के लिए एक वेल ट्रेन मैन पावर के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम भी समाप्त हो चुका है। कुछ ही दिनों में अस्थायी परिसर के अंदर हम इसका कामकाज शुरू करेंगे। सहकार टैक्सी इस साल बदलने से पहले शायद हम लेकर आ जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और जिसमें सीधा मुनाफा उसका ड्राइवर के पास जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के लिए भी हमने भारत के लक्ष्य तय कर उसको नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। आयकर के इनकम टैक्स से हमारे कई सारे मुद्दे हमने रिजॉल्व कर दिए हैं। मैंने जैसा पहले कहा, सहकारिता में सरकार ये मॉडल को हम धीरे धीरे अब सब जगह अप्लाई कर सके इतना पुख्त बना चुके हैं, मैच्योर बना चुके हैं। और कोऑपरेटिव बैंकों के लिए भी कई नई शुरुआतें हमने की हैं। इसके साथ साथ 3 बहुराज्यीय सहकारी समिति बनाई है, एक एक्सपोर्ट के लिए, एक बीज के लिए और एक ऑर्गेनिक के सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये तीनों समितियां आने वाले दिनों में जिस तरह से हमारे कोऑपरेटिव के आज अमूल, इफको, क्रिप्को बहुत अच्छी कोऑपरेटिव दुनिया जानती है, इसी प्रकार से तीनों समितियां आगे बढ़ेगी, इसका मुझे विश्वास है। एनसीडीसी की भूमिका भी बहुत अच्छे तरीके से हमने बढ़ाई है, आने वाले दिनों में बढ़ेगी। चीनी मिलों को आर्थिक रूप से एक प्रकार से आत्मनिर्भर करने के लिए हमने
10,000 करोड़ की सहायता की है। टैक्सेशन का 15,000 करोड़ का पुराना सालों पुराना प्रॉब्लम हमने रिजॉल्व किया है और इथेनॉल के माध्यम से और इथेनॉल को भी मल्टीपर्पज बना, इथेनॉल के संयंत्र को मल्टीपर्पज बनाकर हम इसमें भी अब आगे बढ़ रहे हैं। श्वेत क्रांति 2 आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास का बहुत बड़ा पिलर बनने वाला है और इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बहुत प्रमुखता से हम करने में आगे बढ़े हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ सहकारी मंत्रालय की रचना की। उसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना था, विकास को, डेवलपमेंट को, सर्वस्पर्शीय, देश के हर कोने को छूने वाला विकास और सर्वसमावेशी, देश के हर वर्ग को समावेश करने वाला विकास करना था। कोई डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल सफल नहीं हो सकता जिसमें देश का एक एक नागरिक इसकी चिंता न हो। तो एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय विकास का मॉडल बनाने का काम सहकारिता मंत्रालय ने हाथ में लिया है। मुझे विश्वास है कि आज जो कोऑपरेटिव पॉलिसी यहाँ सबके सामने रखी गई है, एक कोऑपरेटिव पॉलिसी आने वाले 25 साल के साथ लिए, मतलब देश की आजादी की शताब्दी तक ये क्षेत्र को रिलेवेंट भी बनाएगी, एक क्षेत्र को कंट्रीब्यूट करने वाला क्षेत्र भी बनाएगी और एक क्षेत्र को भविष्य का क्षेत्र भी बनाएगी। इसका मुझे विश्वास है। यहाँ ढेर सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में मुझसे भी सीनियर है, बहुत अच्छा काम किया है। मेरा सभी से और आज के कार्यक्रम के माध्यम से सभी राज्यों को भी अनुरोध है कि राज्य भी सेक्टर वाइज और अपने स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसी के अनुसंधान में कोऑपरेटिव नीति को तैयार करें और राज्य में कोऑपरेटिव के डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़े। अंत में मैं 48 सदस्य जो प्रभु साहब के नेतृत्व में इसके लिए जो मंथन किए हैं, वो सभी का सहकारिता मंत्रालय और देश के करोड़ों कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए भाइयों बहनों की ओर से हृदय पूर्वक धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಹಕಾರ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಶಿವರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ನೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಂಧನದ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ TM ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿದ್ದು ನಾಳೆ ಇರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಇದ್ದು ನಾಳಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಮಾಸ್ ಟಿವಿನ ನೋಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ.